Good afternoon and welcome everybody. I welcome all our audience for the 26th program of Aapka Vishwas Hamara Prayas of Student Service Center, Indira Gandhi National Open University. As you know, we come for you every fortnightly with a specific school of studies with the objective to share the information about that particular school, about the programs which they are offering and their targets, the opportunities which the learners can get after completion of these programs. This 26th program is exclusively this time is organized for our learners, stakeholders, with the help of School of Computer and Information Sciences. As we know that information and technology is a very effective mode of sharing information nowadays, and the programs which we are offering as a university in computer and information science is also very important as far as career opportunities of our students are concerned and for the personal knowledge also. Today we have with us the Director, School of Computer and Information Sciences, Professor P.V. Suresh. I, on my behalf and on behalf of all of you, welcome Professor Suresh ji. Thank you. Because he will be telling us about the program which the school is offering for the benefit of our learners. Professor Suresh has a very big experience, a large experience as far as the discipline of computer science is concerned. I think long back, about 25 years back, he joined the university as assistant professor and then associate professor. Today he is professor as well as among the senior professors of the university in computer and information sciences. He has seen the school growing up to its heights, and they have been offering many programs right from certificate, diploma, PG diploma, undergraduate and postgraduate. Besides these programs, the university with the help of School of Computer and Information Sciences have been offering research degree programs also for the award of PhD. With this, to start this program formally, I would like to apprise my learners and the stakeholders and listeners about some of the important information which can be useful for all the learners, not only in the computer and information sciences program, but those who are associated and pursuing their program of study with Indira Gandhi National Open University. First of all, I would like to tell our learners that the academic sessions of July 2023 admissions were going on since last 2 months, and the admissions for fresh admission and as well as re-registration for next semester was on, but last date is tomorrow. I would like to request my listeners and all the students, if they have not done the pending procedures and necessary things which they are supposed to do, they should complete it by today or by latest by tomorrow. Besides this, another information which I would like to share with the learners, that term and examinations for the university is scheduled to be held in December 2023, for which examination forms are going on. I think those who are eligible, they should fill the examination form according to their choice of examination center, and they should not wait for any further, because if they wait, then they may not likely to get
their choice of examination centers. The third information which I would like to share with you all, the submission of assignments for term end examination 2023 is also on, and last date is 15th October. So there are still 5-6 days more remaining with you. So you please submit that exercise also as soon as possible, so that last minute hurdle is not faced by you. With this information, I would also like to request all the listeners, audience, if you have any query related to this program or from the point of view of our university, you can connect with us on the telephone lines which are scrolling on the television screen of your television. So you can contact us anytime. Today with us we have our students, particularly who belong to School of Computer and Information Sciences with us, and they are our ambassadors, and they will be sharing their experiences with us, that how they feel about the nature of the programs which the university is offering. With this brief, I would like to request Professor Suresh ji to tell about the School of Computer and Information Sciences, that what is the objectives and what type of programs the school is offering and what is in their future perspectives. Thank you, Dr. Bharat. First of all, I would like to thank you for bringing this particular program, which is being viewed by many people across the world, and especially thanks for inviting the School of Computers and Information Sciences. School of Computers and Information Sciences objectives are to offer the academic programs in those areas at all levels, like certificate, diploma, postgraduate diploma, bachelor's, master's, as well as at the research level, which are completely emerging. So the objective is that if it is a certificate program, something of 6 months duration, then offer in that area wherein the student, after pursuing it for 6 months, will be in a position to face the job interview and get through it. As of long-term programs are concerned, like Bachelor of Computer Applications for 3 years, Master of Computer Applications for 2 years, there we prepare the students for long-term careers with core concepts in place, and once they complete these programs, they will be in a position to learn any new technology that is coming up in the market by themselves and quickly move up the career ladder. School of Computers and Information Sciences currently offers PhD in Computer Science, and apart from this particular research degree program, we also offer Master of Computer Applications, that is MCA, which is of 2 years duration and which is having almost all the latest technologies as it was revised very much recently. Then we have Bachelor of Computer Applications, which is of 3 years duration. Then we have Postgraduate Diploma in Computer Applications of 1 year duration consisting of 2 semesters. Then we have Certificate in Information Technology, a 6 months program, a single semester program. Then we have a certificate in mobile app development, which focuses on app development in both Android and iOS devices in 1 semester, that is of 6 months duration. So these are the programs we offer, and our flagship programs are Master of Computer Applications and Bachelor of Computer Applications, and we revised these programs many times after we launched these programs I think 2.5 decades back. This is a wonderful information which Professor Suresh has shared with our audience. इसके साथ साथ मैं अपने ऑडियंस को और सभी स्टेक होल्डर्स को ये बताना चाहता हूँ
कि जो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के जो प्रोग्राम्स हैं ये इनकी नेचर प्रोफेशनल है और बहुत बार हमारे विद्यार्थी, उनके पेरेंट्स और जो भी जिज्ञासु होते हैं इग्नो से प्रोग्राम करने के लिए, उनकी ये इच्छा रहती है कि जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उनका रिकॉग्निशन स्टेटस क्या है। क्या हम इग्नो से प्रोग्राम करने के बाद हमारे प्रोग्राम्स दूसरे विश्वविद्यालयों से जो होते हैं उसके इक्वलेंट समकक्ष हैं कि नहीं। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय है जो कि पार्लियामेंट एक्ट से बना है, एक नेशनल यूनिवर्सिटी है और इसका जुरिस्डिक्शन ऑल ओवर इंडिया है। इग्नो अपने 57 रीजन सेंटर्स के नेटवर्क से, जो कि अंडमान निकोबार से लेकर लेह लद्दाख तक नॉर्थ में और ईस्ट में ईटानगर, अगरतला, मणिपुर, नागालैंड से लेकर के आपके कच्छ, गुजरात, राजस्थान तक हमारे रीजन सेंटर्स हैं और इन रीजन सेंटर में 2500 से ज़्यादा हमारे जो स्टडी सेंटर्स हैं जहां पर बच्चे आकर के अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं और उनकी जो दुविधाएं हैं, उनके जो प्रश्न हैं, वहां पर फैकल्टी उनको रिमूव करते हैं। जहां तक रिकॉग्निशन की बात है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सभी प्रोग्राम्स यूजीसी से, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से, जो कि इंडिया की एक रेगुलेटरी अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है, उससे रिकॉग्नाइज्ड हैं। और जहां तक स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल नेचर के प्रोग्राम हैं और इसमें रिकॉग्निशन की लिए भी ज़रूरत लगती है बच्चों को, तो ये भी सारे प्रोग्राम हमारे MCA और PGDCA ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड हैं। और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो कि एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है टू रेगुलेट हायर education in the country, time and again they have been coming out with many notifications that programs which are completed through open and distance learning mode or in online mode, they are equal if compared with the conventional university program as far as their quality, eligibility for jobs and for further higher education is concerned. तो हमारे विद्यार्थियों को जो भी हमें अभी हमसे जुड़े हुए हैं, अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, अपने अकादमिक सेशन में किसी न किसी लेवल पे हैं, और वह सभी विद्यार्थी जो हमसे अभी जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना आवश्यक समझता था। इसके साथ साथ कई बार बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब, कि कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज प्रोग्राम, क्योंकि इसमें साइंसेज लगा है, तो जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है हमारे विद्यार्थियों के लिए, पर्टिकुलरली BCA के लिए और MCA के लिए, तो क्या विद्यार्थियों को 12th तक, जब 12th के बाद हमारे यहाँ आएंगे, तो उनको अपने 12th के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ज़रूरी है कि वो साइंस पढ़ के आएँ तब BCA कर पाएंगे, या मैथमेटिक्स उनके पास होना चाहिए, या हमारे विश्वविद्यालय में कोई ऐसा प्रोविज़न है कि जिससे जो विद्यार्थी मैथमेटिक्स या साइंस बैकग्राउंड से नहीं आए हैं वो BCA कर पाएँ, और अगर वो BCA कर पाएंगे तो बाकी विश्वविद्यालयों से जो BCA कर पाएंगे उससे वो किस तरह से कम्पीट कर पाएंगे और वो किस तरह से उस लेवल पे फ्लोट कर पाएंगे। हाँ, इस मामले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10+2 में साइंस या मैथमेटिक्स होने का ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा इग्नो का बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में अगर वो एडमिशन चाहता है तो उनको 10+2 तो ज़रूरी है। अगर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है तो उनको एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं 10+2 में मैथमेटिक्स पढ़ा हूँ तो डायरेक्टली BCA में एडमिशन हो जाएगा और 3 साल का प्रोग्राम होगा। अगर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा हूँ तो तब भी BCA में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, लेकिन साथ साथ में एक मैथमेटिक्स कोर्स है उसमें भी एडमिशन लेना पड़ेगा, वो सिंगल सब्जेक्ट है, उसको BCA पढ़ते वक्त पैरेलल में करना है और उसको भी सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। और साइंस का कोई ज़रूरत नहीं है। 10+2 वो
कुछ भी ग्रुप का हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स रहने से वो एक कोर्स एक्स्ट्रा करने का जरूरत नहीं है। अगर मैथमेटिक्स नहीं है तो एक कोर्स एक्स्ट्रा करना है। और जब बीसीए इग्नो से पास आउट होगा, वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ, बाकी यूनिवर्सिटी से जो बीसीए के साथ आए हैं उनके साथ आराम से compete इसलिए कर पाएगा क्योंकि हमारा बीसीए प्रोग्राम में क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे होते हैं। तो वो मंडे टू फ्राइडे वो प्रैक्टिस कर सकता है प्रोग्रामिंग और दूसरा कॉन्सेप्ट्स, एक्स्ट्रा कोर्सेस भी कर सकता है कहीं और से। तो इनको काफ़ी बड़ा एडवांटेज है कि इग्नो बीसीए के होने के वजह से इनके पास 3 साल का डिग्री भी है, साथ साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी है। बाहर जो बीसीए पढ़ के आता है वो कहेगा कि मैंने इन 3 सालों में बीसीए किया था, लेकिन हमारा स्टूडेंट कहता है कि मैं इन 3 साल में बीसीए भी किया था और इन कंपनीज में मैंने काम भी किया था। इसलिए जो इग्नू से बीसीए करता है उसको काफ़ी एज है। और हमारा एक्सपीरियंस ये है कि जब बीसीए में फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट होने के बाद जब हम वाइवा करते हैं, उनमें हम कई स्टूडेंट्स को देखते हैं जो अब्रॉड से ऑनलाइन में ज्वाइन होते हैं। वो सिर्फ हमारा बीसीए अभी पढ़ रहे हैं, वाइवा भी क्लियर होने के बाद अगर बाकी भी कोर्सेस क्लियर है तो तभी उसको बीसीए मिलेगा, लेकिन वो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में है, वो भी अच्छा कंपनीज में अब्रॉड से लॉग इन हो रहे हैं। तो BCA is a wonderful degree to do after 10+2. They are completely energetic. They don't have any dependents. They have enough time. They have to come to the center only on Saturday, Sunday, and Monday to Friday they can acquire skills in the emerging areas. ये मैं BCA के बारे में कहना चाहता हूँ। जी, ये एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोफेसर सुरेश ने दी हमारे विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि हम स्टूडेंट सर्विस सेंटर में इस तरह के बहुत सारी क्वेरीज हमारे विद्यार्थी और उनके पेरेंट्स पूछते हैं कि क्योंकि कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें शायद मैथमेटिक्स की या एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है, अगर हम इसको इग्नोर से करेंगे तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तरह की रहेंगी कि नहीं रहेंगी। इग्नो के जो प्रोग्राम्स हैं उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है और क्रेडिबिलिटी है वो इस बात से भी हम मेज़र कर सकते हैं कि अकेले स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के जो प्रोग्राम हैं, करीब करीब 10 प्रोग्राम्स एट द लेवल ऑफ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा एंड मास्टर्स लेवल पे, यूजी लेवल पे और रिसर्च डिग्री प्रोग्राम पे स्कूल ऑफ़र करते हैं। उसमें अगर हम देखें तो स्कूल में करीब करीब 1.5 लाख बच्चे हमारे स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंसेज से डिफरेंट प्रोग्राम्स में लगे हैं। और जैसा प्रोफेसर सुरेश जी ने कहा भी कि बीसीए हमारा एक मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है जहां एनरोलमेंट इस वक्त जो है वो करीब करीब 1 लाख के करीब है। और 1 लाख एनरोलमेंट एक बहुत बड़ा साइज़ होता है। कभी कभी एक विश्वविद्यालय में, पूरे विश्वविद्यालय में 1 लाख एनरोलमेंट होता है, और हमारे स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज में अकेले में ही 1.5 से पौने 2 लाख के करीब बच्चे कंप्यूटर साइंस में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जब मैं एनरोलमेंट की बात करता हूं तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, रिकॉग्निशन है, वो इस बात से भी जाहिर होती है कि विश्वविद्यालय भारतवर्ष में अपने सभी रीजन सेंटर के हेल्प से प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। और भारतवर्ष के बाहर भी हमारे करीब करीब 50 देशों के साथ हमारा एमओयू है, जिन देशों में हमारे विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं और अपने विभिन्न लेवल्स पे अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये सब बातें ये बताती हैं कि इग्नू की क्रेडिबिलिटी, उसकी जो जानकारी है कितने सारे विद्यार्थियों को है, और देश के कोने कोने में तो हम उपलब्ध हैं ही अपने विद्यार्थियों की सेवा के लिए। हम अब देश के बाहर भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो विदेशी छात्र हैं वो भी हमसे जुड़ सकें, या जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं वो हमारे विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर सकें। जब हम साइज़ की बात कर रहे थे एनरोलमेंट की, तो मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जहाँ तक एनरोलमेंट की बात है, संसार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। और अभी जो हमारे करंट स्टेटस है उसमें
35 लाख से ज़्यादा बच्चे अभी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इतने ही बच्चे हमारे विश्वविद्यालय से शिक्षा लेकर के जा चुके हैं जो अपने अपने कार्य में बिजी हैं और अपने अपने कार्य क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। इस बैकग्राउंड के साथ जो मेरा अगला प्रश्न रहेगा कि हम विश्वविद्यालय ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, जिसको ट्रेडिशनल डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं, उसके तहत तो हम प्रोग्राम ऑफर करते ही हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है और इसमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़रूरत होती है। ये अभी प्रोफेसर सुरेश जी ने बताया भी कि रिवीजन की हमें हमेशा ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ कहीं पर इनोवेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ और ओवरनाइट चेंज होते हैं। फिर सुरेश जी की सारी फैकल्टी लगती है कि इस प्रोग्राम को हमें अब रिवाइज करना है। तो डिस्टेंस एजुकेशन में और ख़ासकर हमारे विश्वविद्यालय में जो प्रोग्राम्स हैं उनका जो अपडेशन है वो एक रूटीन फीचर है। इसीलिए जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी जो डिमांड है, जो हमारे इग्नू से शिक्षा प्राप्त करके अलग अलग कार्य क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं, तो उनके बारे में मैं प्रोफेसर सुरेश जी जानना चाहता था कि जो हमारे विद्यार्थी हमारे यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके ज़्यादातर उनको जो वो जॉब के लिए जाते हैं, तो उनको किसी कोई ख़ास प्रेफरेंस या कोई डिफ़िकल्टी आती है तो हम उसको कैसे रिमूव करते हैं। और प्रेफरेंस तो आपने बताया, क्योंकि हमारे यहाँ तो अर्न वाइल यू लर्न, और जब लर्निंग करते हैं तब वो लर्निंग प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों तरीके से होती है। इस बारे में आप हमें बताइए कुछ। हाँ श्योर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक चीज़ का कुछ लिमिटेशंस भी होता है जी। तो कभी कभी क्या होता है कि जब प्रोजेक्ट्स मिलता है कंपनीज को, कंपनी को जब प्रोजेक्ट मिलता है तो वो जो क्लाइंट होता है जिन्होंने प्रोजेक्ट दिया था वो कुछ स्पेसिफिकेशन देता है। वो कहता है कि हमारा प्रोजेक्ट को सिर्फ ऐसे प्रोफाइल वाला लोगों से ही आप काम कराना है। वो कहता है कि एमटेक होना जरूरी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो हमारा प्रोजेक्ट में लगे रहेगा, या वो कहेगा कि कोई आईआईटी से किया होगा उन्हीं को आप लगाना है। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। सो समटाइम्स these restrictions they work against our students, because the company which is hiring a software professional will not consider anybody who is not fitting the profile of the client. But this happens very rarely, because at the end of the day they want a person who does work efficiently, consuming less time, or at least meeting the targets, and who is honest to the company. In the case of our students, I have already said the advantages, that they carry experience also. Over and above that, some companies feel that अगर मैं इग्नो के स्टूडेंट को लूँगा तो कम से कम ये 3 साल मेरा साथ रहेगा, बिकॉज वो BCA पढ़ रहा है इग्नो में, बीच में कहीं नहीं जाएगा। उनको ये भी लगता है कि मैं MCA स्टूडेंट को लूँगा तो ये 2 साल तो रहेगा, क्योंकि उसको MCA तो कंप्लीट करना है, तो ये 2 साल मैं मैनेज करके इनको अपना नौकरी में कंटिन्यू करा सकता हूँ। लेकिन अगर कोई दूसरे यूनिवर्सिटी से कुछ करके आया है तो वो ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, वो कहीं भी टाइम पे निकल सकता है। तो हमारा स्टूडेंट्स के साथ एडवांटेज ये है कि ये पढ़ते रहते हैं, एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, तो उनको नौकरी थोड़ा जल्दी मिल जाता है। बाकी लोग डिग्री ले आके दिखाते हैं तो उस टाइम पे उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। जब नौकरी ज्वाइन करते हैं तो दे ऑलवेज लुक फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड दे मे जंप ऑफ इजीली। तो इन द केस ऑफ आवर स्टूडेंट्स, इन मेनी केसेस when I interacted, they said that, sir, the company is having confidence in me because they know that I am not going to leave my MCA for the sake of anything. Now the only company's responsibility is that the student doesn't change the job, because at least he can't leave the country. So there is a bit of assurance in the case of our students. Then when coming to the roles of the students, most of our students work in software development companies which are purely into the development or maintenance. But very few I have counted who are working
in companies of other areas, but on the side of the information technology. फॉर एग्जाम्पल आज हमारा साथ एक स्टूडेंट भी है जिन्होंने इन्फोसिस में काम किया था, एप्पल के साथ प्रोजेक्ट में भी लगा हुआ था, अभी उनका खुद का कंपनी भी है. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आईटी सेक्टर में जो कंपनीज लिस्टेड है या अनलिस्टेड है उनके साथ काम करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स अच्छा कंपनीज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिविजन्स में काम करते हैं. और एज ऑफ आवर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कंसर्न्ड, अभी 4-5 दिन पहले वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम श्रीनगर, he is Munib Amin Bhatt. He is our BCA student. He entered the Apple's Hall of Fame. He is currently pursuing our BCA. तो ये हमारा BCA स्टूडेंट है, वो अभी BCA कंप्लीट भी नहीं हुआ, वो एप्पल के हॉल ऑफ फेम में एंट्री किया क्योंकि एप्पल के सर्वर सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटीज को इन्होंने डिटेक्ट किया और एप्पल को इन्फॉर्म किया, और एप्पल उनका कम्युनिकेशन देखने के बाद वो पूरा स्टडी करके उसको एप्पल हॉल ऑफ फेम लिस्ट में एंट्री किया गया था. सो दिस इज अ वेरी बिग हॉनर फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज टू द BCA प्रोग्राम and as well as to the school and the Indira Gandhi National Open University as a whole. So the list is endless. And as I am saying, since they come up with experience, they always have an extra edge, except in one case wherein the client says that इनको BTech होना चाहिए या इनको MTech होना चाहिए. तो जब क्लाइंट कहता है तब कंपनी का एक लिमिटेशन होता है कि वैसे ही प्रोफाइल के लोगों को वो ले. सो दीज आर द थिंग्स. ये एक बहुत अच्छी जानकारी आपने शेयर की हमारे सभी स्टेक होल्डर्स के लिए और विद्यार्थियों के लिए जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं और जो आगे जुड़ेंगे. जहाँ तक चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स की बात है, जब हम बात करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन के साथ एक स्टिग्मा अटैच रहता है कि डिस्टेंस एजुकेशन में या ओपन लर्निंग में वो बच्चे जाते हैं जिनको कन्वेंशन सिस्टम में सीट नहीं मिलती. लेकिन मैं अपने सभी श्रोताओं को जो हमसे जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहता हूं कि कन्वेंशनल सिस्टम में जो इनटेक है वो बहुत लिमिटेड होता है. और हमारे देश में, भारतवर्ष में, जो कि एक बहुत बड़ा देश है और स्टेक होल्डर बहुत सारे हैं, हायर एजुकेशन में जो इनटेक है कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ में वो बहुत लिमिटेड है. लिमिटेड होने की वजह से जो भी विद्यार्थी हैं जो एलिजिबल होते हैं उस कोर्स के लिए, वो सब के सब एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं. तो जब कोई विद्यार्थी एंट्रेंस टेस्ट पास करने के बाद भी, मेरिट में आने के बाद भी वहाँ एकोमोडेट नहीं हो पाते, तो उन विद्यार्थियों के लिए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ से जुड़कर वो अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं. तो मैं ये बताना चाह रहा था, जब मुझे अभी कुलगाम का जो एक्सपीरियंस प्रोफेसर सुरेश ने बताया कि विद्यार्थी सभी जगह एक जैसे होते हैं और वो अपने अपने शिक्षा में जुड़े रहते हैं और अपनी लगन से अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं. और जब विद्यार्थी अपने जॉब्स में जाते हैं तो वहाँ पर पता लगता है कि जिसने अच्छा सीखा है, ज़्यादा सीखा है, गुणवत्ता से सीखा है, तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं. और जैसा कि प्रोफेसर सुरेश जी ने अभी बताया था कि हमारे विद्यार्थी सीखने के साथ साथ जो उनकी जॉब्स की या प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स की जो स्किल है वो उनको बहुत कंट्रीब्यूट करती है जब वो अपने जॉब प्रोफाइल्स में जाते हैं. मैं एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम अभी इस प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद हम फिर आपसे जुड़ेंगे और इस चर्चा को जो हमने आज आपके लिए कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस के प्रोग्राम्स के लिए ऑर्गेनाइज की है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे. तो आप कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद हम आपसे फिर रूबरू होते हैं.
नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं और मैं आप सभी का आह्वान भी करता हूं कि जो हमसे बात करना चाहते हैं इग्नो के बारे में या स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन के जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में, वो हमसे जुड़ सकते हैं उन टेलीफोन लाइंस पे जो आपके टीवी स्क्रीन के नीचे की साइड में स्क्रॉल हो रही हैं। आप हमसे कभी भी जुड़ सकते हैं इन टेलीफोन के माध्यम से। इसके अलावा अगर आपके जहन में कभी भी कोई और प्रश्न आता है इस प्रोग्राम के बाद भी, तब भी आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे ईमेल के तहत। मैं आपको अपना ईमेल बता देता हूँ, ssc@igno.ac.in एंड दूसरा ईमेल है director@ssc@igno.ac.in। इस पर आप अपने प्रश्न पूछ के हमसे जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहें इग्नो के बारे में या स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन साइंसेज के जितने प्रोग्राम्स हैं इसके बारे में, आज के बाद भी आप हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो अब हम आपका विश्वास हमारा प्रयास में जारी रखते हुए, मैं अपने विद्यार्थियों को ये बताना चाहूँगा कि इग्नू क्योंकि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इंस्टीट्यूशन है और जो हमारे प्रोग्राम्स हैं उसका जो बेसिक स्टे होता है वो हमारा कोर्स मटेरियल होता है। और डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो प्रोग्राम्स हैं वो आजकल, पहले तो इंडिजिनस ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से ही प्रोग्राम्स ऑफर होते थे और अब विद द हेल्प ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन प्रोग्राम्स भी कई विश्वविद्यालय ऑफर करते हैं। और इग्नो क्योंकि हमेशा से एक सिस्टम लीडर रहा है, तो इग्नो भी ऑनलाइन प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो हम कैसे ऑफ़र करते हैं, उसकी किस प्रक्रिया से हम गुजरते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया कि जो हमारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के जो कोर्सेज़ हैं उसका जो बेसिक स्टे होता है वो हमारा कोर्स मटेरियल होता है, क्योंकि हमारे विद्यार्थी और हम जो हमारे शिक्षकगण हैं वो फेस टू फेस नहीं होते हैं। तो हम यह कोशिश करते हैं कि जो हमारा कोर्स मटेरियल है वो इस तरह से लिखा जाए कि जब कोई भी विद्यार्थी उस कोर्स मटेरियल को पढ़े तो उनको उस कोर्स मटेरियल में टीचर इनबिल्ट महसूस होना चाहिए। तो जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की जो पेडागॉजी है वो हम उस स्पेस को रिमूव करने के लिए हम टेक्स्ट को इस तरह से लिखते हैं कि जो कंटेंट है हमारा वो सेल्फ मोड जैसा हो, सेल्फ कंटेंट हो, सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ इवेल्युएटिव हो और सेल्फ डायरेक्टिव हो। यह सब बातें एक जब विद्यार्थी पढ़ता है कोर्स मटेरियल तो उसको एक क्लासरूम की फीलिंग भी देता है, क्योंकि जब विद्यार्थी कोर्स मटेरियल स्टडी मटेरियल अपना पढ़ रहा होता है तो वो उसमें एक तल्लीन हो जाने के बाद तो उनका एक कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे इस्टेब्लिश हो जाता है, जैसे क्लासरूम में टीचर और विद्यार्थी के बीच में होता है, उसी तरह से यह कोर्स मटेरियल होता है। तो ये तो ट्रेडिशनल हमारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का सिस्टम होगा जिसके तहत हम अभी डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी नई प्रक्रिया है, जो नए डेवलपमेंट में, वो हैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स। इग्नो ऑनलाइन के तहत भी कई सारे प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। तो मैं प्रोफेसर सुरेश जी जानना चाहूँगा हमारे सभी विद्यार्थियों की तरफ से कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज कंप्यूटर्स एरिया में तो प्रोग्राम्स ऑफर करते ही हैं ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से, तो उसको उस शिक्षा को हम कैसे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम प्रोफेशनल है, उसकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हैं वो हम कैसे कंप्लीट करते हैं, हमारे विद्यार्थी हमारे शिक्षकों से कैसे जुड़ते हैं, और फिर जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हम सर्टिफिकेट लेवल पे या डिप्लोमा पे ऑफर करते हैं उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, इस बारे में हम थोड़े से विद्यार्थियों को बताएं। Okay. Currently, SOCIS is offering 3 programs in online mode. एक MCA है, वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड एज वेल एज ऑनलाइन लर्निंग में अवेलेबल है।
second is BCA, the other is Certificate in Information Technology. In the case of those programs which are being offered in open and distance learning mode, स्टूडेंट का सारा क्लासेस थियरी एंड प्रैक्टिकल सैटरडे संडे को होंगे और एक डिजिग्नेटेड स्टडी सेंटर में होंगे। तो स्टूडेंट को फिजिकली उधर जाना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा, बहुत प्रैक्टिकल्स थियरी उधर ही होंगे। तो प्रैक्टिकल्स का अटेंडेंस भी मिनिमम अटेंडेंस मैंडेटरी है जो 75% होता है जो सारे क्लासेस में। थियरी में तो कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन सारा क्लासेस सैटरडे संडे को स्टडी सेंटर में फिजिकली होता है, उधर जाके अटेंड करना पड़ेगा। नाउ इन द केस ऑफ ऑनलाइन प्रोग्राम्स, स्टूडेंट डजंट नीड टू गो एनीवेयर, बोथ थियरी एंड प्रैक्टिकल्स आर कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड। उसमें इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया था, उसका यूसेज होता है काफ़ी। वंस स्टूडेंट टेक्स एडमिशन इन एनी ऑफ द ऑनलाइन प्रोग्राम्स MCA and BCA and CIT, they get a username and password, that is login credentials for the learning management system access. तो वो LMS को एक्सेस करना है, उधर सारा कोर्स मटेरियल अवेलेबल है। फिर असाइनमेंट्स का जवाब लिखने के बाद असाइनमेंट्स को भी उसी में अपलोड करना पड़ेगा। एंड इग्नो पूरा देश में एक रीजनल सेंटर को हर एक प्रोग्राम के लिए नोडल रीजनल सेंटर बनाया। हर एक प्रोग्राम का मतलब हर एक ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए। तो फॉर एग्जांपल इफ वी टेक द केस ऑफ MCA, द प्रोग्राम कोड ऑफ द ऑनलाइन MCA प्रोग्राम इज MCA-OL. So we have one nodal regional center. That nodal regional center will conduct online classes for all the students who took admission to MCA online program. Practicals भी वही regional center organize करेगा, मतलब both theory and practical are organized by the same regional center. Assignments के लिए, फिर course material के लिए जो login credentials आपको दिया गया था, you have to use them and you have to log into the LMS. You have to submit your assignment through LMS. So एक LMS जो है, it plays a major role in the life cycle of a student who enrolls to the online program. लास्ट में प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट भी ऑनलाइन सबमिट करना पड़ेगा। इसके पहले प्रोजेक्ट प्रपोजल अप्रूव करना पड़ेगा, वो भी LMS के थ्रू अपलोड किया जाता है। हर एक कोर्स में असाइनमेंट होता है, इसलिए जितने भी कोर्सेस हैं उतने असाइनमेंट्स LMS में लॉगिन करके अपलोड करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन होगा, फिर मार्क्स तो आपको ग्रेड कार्ड में डायरेक्टली आ जाएंगे। तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन स्टूडेंट है तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स में विदेशों से भी कई स्टूडेंट्स हैं। इग्नो के ऑनलाइन प्रोग्राम्स में हमारे MCA, BCA, CIT में भी स्टूडेंट्स हैं। इनमें कुछ प्रोग्राम्स में विदेशों से भी एडमिशन्स हुआ था। सो द ओनली कन्वीनियंस इज दैट you don't need to physically go for the classes. However, what I suggest is that in case it is possible, always try to visit the study center. Because online में जब करना है, you need to have good internet access also. कई स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन में, फिर कहते हैं कि इंटरनेट एक्सेस नहीं है सर, डाउनलोड करना मुश्किल हो रहा है सर। तो जहाँ पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर का इश्यूज है, उधर MCA प्रोग्राम जो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में है वो ज्वाइन करना बेहतर है। उसका प्रोग्राम कोड है MCA_new। जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई इश्यू नहीं है, सेल्फ लर्निंग भी ज़्यादा कर सकते हैं, अपना आप भी पिकअप हो सकते हैं, उनके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम्स आर दी बेटर। सो ये नहीं है कि हम MCA ऑनलाइन में करेंगे तो वैल्यू रहेगा या ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में करेंगे तो वैल्यू रहेगा। आप अच्छा पढ़ाई करने से आप जो किया था MCA उसका वैल्यू बढ़ेगा। इसलिए आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको चुनना है। लेकिन टू कैटर एवरीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड, वी लॉन्च्ड MCA, BCA and CIT in online mode also.
So this is what I would like to जी, say about it. थैंक यू प्रोफेसर सुरेश। जब हम इग्नू प्रोग्राम्स की बात करते हैं और जो हमारे लर्नर्स हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो जुड़ करके अपने अपने एरिया में योगदान भी दे रहे हैं, वो हमारे एम्बेसडर्स हैं और खुशबू की तरह देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कुछ विद्यार्थी जो हमारे होते हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ अवर अदर लर्नर्स, आप कोई सक्सेस स्टोरीज हमारे विद्यार्थी जो हमारे यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और अब अपने ही एरिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मुझे याद है कि स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के कुछ विद्यार्थी जो हमारा इग्नू इनोवेशन काउंसिल है, उसके तहत एक कंपटीशन होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कराती है, और स्कूल ऑफ कंप्यूटर इंफॉर्मेशन साइंसेज के जो प्रोग्राम के जो बच्चे हैं, मुझे लगा बीसीए का वो बच्चा था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और यूनिवर्सिटी को फर्स्ट रैंक उसमें दिलवाया था। तो इस तरह के जो विद्यार्थी हैं, और हमने जो कम्पीट किया था वो उसमें कंपटीशन में आईआईटीज, कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज सभी थे हमारी कैटेगरी में। तो उसमें भी हमारा बच्चा जो हमारा विद्यार्थी था जो विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उनको फर्स्ट प्राइज मिला था। तो ऐसी सक्सेस स्टोरी जो हमारे विद्यार्थी इस वक्त हमसे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या शिक्षा लेकर के जा चुके हैं और अपने अपने एरिया में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और मैं देखता हूं हमारे साथ कुछ विद्यार्थी आपने आज बुलाए भी हैं, तो मैं चाहता हूं कि उनके एक्सपीरियंसेस आप प्रोफेसर सुरेश जी शेयर करवाएं ताकि हमारे दूसरे विद्यार्थियों को थोड़ा उत्साहवर्धन हो। Yeah, sure. Thank you. I think I would like to start with Anand Shankar. So Anand Shankar is our student. He has done his BCA program as well as MCA program from IGNOU. So today he is with us. Currently he is having his own firm. However, till the day he started his own firm, he worked across many companies. There are many reputed companies in them. There are also many repeated projects in those companies. So I would like to ask Anand Shankar that how BCA and MCA programs have become helpful to you in your career, and particularly how did they impact your performance in a company like Infosys where you worked and you have done a project for Apple also there. So Anand, share your experiences. Sure, sir. Thank you. I'm Anand Shankar. So I have completed BCA and MCA both from IGNOU. So when I was in second year of BCA, then only I got the job in CMC. So that was my first company. So I worked around a year there, and then after that I started switching one by one. Then I moved to Bangalore, and there was a Digini company, so I joined that. And then after that I joined Technotree. So I was like about to complete BCA. So when I joined Technotree, so that time my BCA was completed, and I started MCA then with the same IGNOU. And MCA also got completed there, and then after that I joined Sonata Software, and then Infosys, and then Ventive Technology, and then NIT Technology. So in many firms I worked after that in different roles. Mostly like I'm the mainly Java developer. Like I started as a Java developer, and then I become a senior technical architect, solution architect, like that role I played. And many like leading with the leading clients like Apple and all, I have worked on and delivered the projects on technologies. And now I started my own firm that is called the CodeG Technologies. So we are some friends started a kind of the venture to develop a product on AI. So we are working on that. So what I feel basically, basically I personally feel when I joined the IGNOU, so because of the financial issues. So because here the fee was very low, and in compared to the engineering colleges where you need a lakhs of rupees, but my father was not
able to afford that time. So that was the key factor for me personally, and I have seen in my other students also who were in class. So that was a very, very key factor. I started with the IGNOU, and IGNOU also given me the same place where I think I would have studied in any other reputed regular colleges also. So because I'm also at the same place, in the same level, and this time I used to interview many IITians also. So I don't think I lost anything, even so it is thanks to the IGNOU that it has given opportunities to the country, that whoever is financially weak or because of some other criteria, if they are not able to achieve the good education, so they can achieve the education, still they can get the goal. So that's the key thing what I have learned through that. So how the programs affected your performance in the company? Because what I found is, you are doing BCA, you are also working. You are doing MCA, you are also working. So how your performance got affected due to the knowledge that you are gaining by pursuing the BCMCA programs in parallel from IGNOU? I think the performance is getting day by day better. Because once you start working in the industry, so mostly people, if you come from the conventional education system, so you are just always think that someone will teach me in the classroom, then only when I will learn. But what I realized in IGNOU, because from the starting only, we are into the practice to read the books. When you are working and still you are studying also, so it is keep on helping to grow and to understand more deeply your subjects, and then it helps in the promotion, everything, because your understanding goes day by day very, very deeper. So and you have the luxury of the time, because in conventional education you don't have this much time, but here you have the time, then so that's also beneficial. गुड, थैंक यू आनंद शंकर जी, बहुत अच्छा लगा आपसे सुन के। और जब हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अपने श्रोताओं को, स्टेक होल्डर्स को, जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो आगे जुड़ेंगे, उनके लिए बताना चाहता हूं कि इग्नू में जब हम प्रोग्राम कंसीव करते हैं कोई भी, तो उसके लिए वो ओवरनाइट नहीं होता है, उसके लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। और स्कूल बोर्ड होता है, स्कूल काउंसिल होती है, फिर एकेडमिक काउंसिल होती है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है। इन सभी प्रक्रियाओं को, प्लानिंग बोर्ड होता है, इन सभी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करके कोई हम प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। उसकी जो टेस्टिंग है, उसके जो टारगेट ग्रुप्स हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो बहुत ही मेटिकुलसली प्लान किए जाते हैं। और एकेडमिक काउंसिल में, स्कूल काउंसिल में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सिर्फ इग्नू के विश्वविद्यालय से ही नहीं होते हैं, वो देश के दूसरे बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से होते हैं। और जो प्रोग्राम की जो कंपेटिबिलिटी होती है बाकी यूनिवर्सिटीज से, और जो रिक्वायरमेंट होती है आजकल के जॉब्स के लिए या फर्दर हायर एजुकेशन के लिए, उस सब को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। जैसा अभी हमारे विद्यार्थी आनंद शंकर जी ने बताया कि मुझे कभी लगा नहीं कि, क्योंकि अब उनका एक्सपीरियंस इतना हो गया है कि वो पहले तो खुद इंटरव्यू देने जाते थे, अब वो इंटरव्यू कंडक्ट भी कर रहे हैं। तो ही इज़ एबल टू एसेस किस तरह के विद्यार्थी और किस तरह की एजुकेशन उन्होंने प्राप्त की है, उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो जब इस तरह की ख्याल हमें मिलते हैं, तो मैं अपने और विद्यार्थियों को ये भी बताना चाहता हूं कि इग्नू से शिक्षा प्राप्त करने के बाद, अभी तक तो हमने बताया कि हमने सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, एमसीए और बीसीए के बारे में, ये तो हम ओडीएल मोड में जो ट्रेडिशनल डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं उसके तहत कराते हैं। इसके अलावा जो हमारा रिसर्च डिग्री प्रोग्राम है, पीएचडी जो होता है, वो पीएचडी हमारा कन्वेंशनल मोड में होता है, उसमें डिस्टेंस मोड से पीएचडी नहीं होती है। और इग्नू से पीएचडी करने के बाद देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में हमारे जो शोधार्थी हैं, जो पीएचडी करके गए हैं, वो अपनी
असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसरशिप लेवल पे काम कर रहे हैं देश के अनेक विश्वविद्यालयों में। तो यह भी एक जानकारी थी जो अपने विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ। और जहाँ तक रिकॉग्निशन की बात है, इग्नो के स्टडी मटेरियल को कॉमनवेल्थ ऑफ COL, कॉमनवेल्थ ऑफ ओपन लर्निंग, उसकी जो एक बॉडी है जो जिसने हमारे कोर्स मटेरियल को एक्सीलेंस का अवार्ड दिया, और इसके साथ साथ जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है, हमारे जो वर्तमान कुलपति महोदय हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव जी, उनकी लीडरशिप में विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड मिला, जो किसी भी विश्वविद्यालय को आपस में compete करके ही मिलता है, जो पैरामीटर्स फिक्स होते हैं। तो A++ ग्रेड दी हाईएस्ट ग्रेड विच ए यूनिवर्सिटी गेट। तो यूनिवर्सिटी बहुत सारे इस तरह के ऑर्नामेंटल से भी सुशोभित है, और जो विश्वविद्यालय के अथॉरिटीज़ हैं, हमारे शिक्षकगण हैं, हमारे जो एकेडमिक्स हैं, हमारे जो सपोर्टिंग स्टाफ है, वो विश्वविद्यालय को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि जो हमारे विद्यार्थी होते हैं वो सच्चे मायनों में हमारे एम्बेसडर्स हैं, और हमारी जो कंट्रीब्यूशन है वही उसको डिस्प्ले कर पाते हैं अपने अपने एरियाज़ में। तो विद्यार्थियों को ही मैं पहला स्थान देना चाहता हूँ, पहली प्रायोरिटी देना चाहता हूँ अपने विश्वविद्यालय की तरफ से, और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ। अब हम प्रोग्राम के लास्ट लेग में हैं। प्रो सुरेश जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी तो हमने MCA, BCA, PG, DCA सर्टिफिकेट एट डिप्लोमा लेवल पे हमने प्रोग्राम अभी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक फास्ट डेवलपिंग और फास्ट चेंजिंग एरिया भी है जहाँ तक हम डिसिप्लिन्स की बात करते हैं, तो कुछ आपने सोचा है आगे फ्यूचर प्लान्स कि हम किस किस एरियाज़ में और प्लान कर रहे हैं कि जहां हम नए प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकते हैं, और कौन कौन से वो एडवांस एरियाज़ हैं जहां पर हम अभी सोच रहे हैं कि हम यहाँ भी अपना कुछ और प्रोग्राम स्टार्ट कर पाएंगे? हाँ, थैंक यू। हाँ, बिल्कुल सोचा था। We will be launching a master's degree program in data science and analytics, MSc in data science and analytics. This is one program we are going to launch in the near future. इसके अलावा we have plans to launch programs in the artificial intelligence and machine learning and many other areas. But currently we are working on the launch of MSc in data science and analytics. जैसे आपने कहा था, इग्नो में जो कंटेंट बनता है वो काफ़ी रिच कंटेंट होता है, जो कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं वो काफ़ी डिस्कशन के बाद होता है। इसलिए अभी ये जो MSc इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में कोर्सेज फाइनल हो गया था, अब वी आर वर्किंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप्स। सो दिस इज़ वन प्रोग्राम विच वी आर प्लानिंग टू लॉन्च। एंड इसके अलावा आई वांट टू शेयर वन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि suppose you are doing MCA from any other institution, and after completion of MCA maybe you have to do some courses in the emerging areas for which you have to spend some money also. लेकिन IGNO revised its MCA program and included all the latest technologies in it. So IGNO MCA में अभी we have artificial intelligence and machine learning, we have IoT, we have mobile computing, we have data science, we have big data. So there are many advanced subjects that are now part of our MCA program. ये हमने 2021 से शुरू किया था। जो 2021 जनवरी में इग्नो में MCA लिया था, वो ये सब्जेक्ट्स सारे पढ़ेगा। इनसे एडवांटेज ये है कि you don't need to again do courses from any other institution after completing your MCA. And in your MCA grade card, all these subjects are visible. So pursuing something as part of your master's program will be giving you a lot of value. And इनमें एक दो सब्जेक्ट्स आप और भी डीपली करना चाहते हैं तो उसमें एक स्पेशलाइज्ड मास्टर्स भी कर सकते हैं, जैसे मास्टर्स इन AI एंड ML, मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी, ऑल दोस थिंग्स इन द फ्यूचर इन पैरेलल. लेकिन नॉर्मली आफ्टर MCA people will be looking for the job. In the case of our students,
they are free for the openings while studying and normally many of them are already working. तो ये जब लेटेस्ट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उनको जो ऑलरेडी करियर में है उसको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव थ्रस्ट मिलेगा. अगर नौकरी नहीं कर रहे हैं तो ये सारा एमर्जिंग एरियाज में करने की वजह से नौकरी का चांसेस और ज़्यादा हो जाएंगे. So this is what I want to share with you, and now I request Dr. Bharat Bhushan ji to close the. थैंक यू प्रोफेसर सुरेश जी. अब हमारा प्रोग्राम का वक्त समाप्ति की ओर है और मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम से जो विद्यार्थी और स्टेक होल्डर हमसे जुड़े हैं उनको ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा और जो विद्यार्थी अभी मन बना रहे हैं हमसे जुड़ने का उनको भी थोड़ा संशय दूर हुए होंगे और मैं चाहता हूं कि आप विश्वविद्यालय से जुड़ें. और जैसा कि आनंद शंकर जी जो हमारे विद्यार्थी रह चुके हैं उन्होंने बताया भी कि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी है, संसार की सबसे बड़े विश्वविद्यालय है. यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही कम्पिटिटिव है क्योंकि कॉमर्शियल नहीं है कुछ भी. तो विश्वविद्यालय से आप जुड़ें और अपनी शिक्षा प्राप्त करके देश के विकास में अपना योगदान दें. इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं. आपने हमसे जुड़े और आपको शुभकामनाएं देते हुए मैं नमस्कार करता हूं. नमस्कार.